بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اپنی پریشانیاں خدا کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کے تمام دکھ خدا تعالیٰ کے پاس چلے جائیں؟ وہ کہتے نہیں، خدا سے ہم کلام کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ یا عبادت ہے یا قرآن سے خدا سے گفتگو کرنا ہے۔ جس نے قرآن کے ذریعے خدا سے گفتگو کی، اس نے تمام زندگی کے سکھ دکھ پا لیے۔ جس نے قرآن کے ذریعے خدا سے گفتگو کی، قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیا، قرآن پڑھتے وقت خدا سے ہم کلام ہوئے، اور اسے دنیا میں اور کیا چاہیے؟ قرآن کا دل جس صورت کو کہتے ہیں، اس صورت میں اتنے راز پوشیدہ ہیں، اتنے راز کہ انسان اپنی عام حالات میں اتنے راز نہ جان سکے۔ یعنی کہ اتنی خوشیاں چھپی ہیں اس صورت میں، اتنے ہماری تمام پریشانیوں کا حل چھپائے، ہمارے تمام غموں کا حل چھپائے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ سورت یاسین کے شروع کے دو حرفوں کے اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت 12 یا 13 نبی میں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے فضائل میں بہت سی روایات مشہور ہیں، مثلا یہ کہ قرآن کا دل ہے، اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو، یعنی کہ جس کو موت آنے والی ہو، جس پر خدا تعالیٰ نے اپنا رحم، اپنا عذاب ڈالا ہو اور اس کی آسانی سے موت نہ نکل رہی ہو، تو اس کے سامنے پڑھے، اور جو فوت ہونے والے ان کے سامنے پڑھے تو انشاءاللہ افادیت ہوگی۔ لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت کی درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، بعض بالکل موضوع یا پھر ضعیف ہوں۔ قلب قرآن والی روایات کو شیخ البانی نے موضوع قرار دیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سورت یاسین پڑھنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور اسے اپنی زندگی میں پڑھیں گے، اور اس کو رات 3 دفعہ سونے سے پہلے سورت یاسین ضرور پڑھیں۔ ایک دفعہ آتی ہے کہ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ دیگروں وظائف اور نوافل کے ساتھ وقت نکال کر اس سورت کو 3 دفعہ سورت یاسین بھی ضرور پڑھیں۔ 3 دفعہ سورت یاسین کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور اپنے لیے دنیا آخرت کی بھلائی مانگیں، اپنی پریشانیاں بتائیں، اپنے غم بتائیں، اپنی تمام پریشانیوں کا حل بتائیں۔ اس سے ہمیں 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ترقی رزق، یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے، مال و اسباب بڑھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے رزق میں کشیدگی ہو۔ اگر کوئی 2 مہمان آ گئے ہوں، اگر کوئی 10-12 مہمان آ گئے اور آپ کے پاس کم ہو کھانے کے لیے، تو آپ ایک بار پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی اس روزی میں۔ دوسرا فائدہ اسقاط درازی ہے، یعنی عمر میں اضافہ ہے، زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بزرگوں کی عمروں میں اضافہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورت یاسین روزانہ پڑھیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ اگر آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے تو اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پر بہت پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر آپ پر پریشانیوں سے پریشانیاں آتی جا رہی ہیں، ایک پریشانی حل ہوئی تو دوسری آ گئی، تو اس سے بھی آپ کو بہت افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ سورت یاسین پڑھنے کا ثواب حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین سرکار دو جہاں رب العالمین نے فرمایا، سورت بقرہ قرآن پاک کی رفعت ہے، اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 ملائکہ نازل ہوتی ہیں، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اور سورت یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
ताजदार रिसालत, शहनशाह नबूवत, सरकार दो जहां, पैकरो अजमत और शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त, मोहसिन इंसानियत, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रात में अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए सूरत यासीन पढ़ी, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और इससे बड़ी क्या बात होगी कि जिसने रात के पहर सूरत यासीन पढ़ी, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। हज़रत सैयदना अनीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर चीज़ का एक दिल है, बेशक हर चीज़ का एक दिल है, यानी इंसान का एक दिल है, जानवरों का एक दिल है, उसी तरह कुरान का दिल सूरत यासीन है। और जो एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ेगा, उसके लिए 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह। जिसने एक दफ़ा सूरत यासीन पढ़ी, उसके लिए 10 सूरत यासीन पढ़ने का 10 कुरान पढ़ने का सवाब होगा। दुनिया की कोई मुश्किल, परेशानी, रकावट, मसाइल, ज़िंदगी का कोई निज़ाम उलझा हो, ताल्लुक़ ख़राब हो, मखलूक से कोई परेशानी हो, 2 रकात नफल नमाज हाजिर पढ़ें। पहली रकात अगर हो सके तो सूरत काफिरून और दूसरी में सूरतुल इखलास पढ़ें, पढ़ लें, वरना कोई सी भी सूरत पढ़ लें। फिर सलाम फेरें, 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ें, 3 दफ़ा सूरत यासीन पढ़ें। इंशाअल्लाह जितनी परेशानियां हैं, जितनी रुकावटें हैं, जितनी आपके ताल्लुकात में कोई मसला है, मियाँ बीवी में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से दोनों में प्यार और मोहब्बत बढ़ जाएगा। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरत यासीन मेरे उम्मत के दिल में हो। हदीस शरीफ में है कि कुरान मजीद का दिल सूरत यासीन है। जो शख्स एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब देता है। एक हदीस में जो शख्स सूरत यासीन को सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के वास्ते पढ़े और आखिरत के लिए पढ़े, उसके पहले सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। जो शख्स सूरत यासीन याद कीजिए, और दूसरे फ़ज़ाइल व बरक़ात के अलावा जो शख्स सूरत यासीन को याद करता है और उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाता है, और उस सूरत यासीन के फ़ज़ाइल व बरक़ात के अलावा सूरत यासीन की भी ख्वाहिश हो, सूरत यासीन पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसके तमाम दुख और दर्द दूर हो जाएगी। जिसने सूरत यासीन पढ़ी, उसे 10 कुरान पढ़ने का जरूर सवाब मिलेगा। जिसने शब में सूरत यासीन पढ़ी, यानी कि सुबह के वक्त पढ़ी, सुबह होने से पहले मग़फ़िरत हो जाएगी, यानी कि उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसके तमाम पिछले जितने भी उसने गुनाह किए, जितनी परेशानियां लोगों को दी, जितना दिल दुखाया, सब माफ़ हो जाएंगे। जिसने मुसीबत, मुश्किल और बीमारी में सूरत यासीन पढ़ी, उसकी तमाम मुसीबतें, मुश्किलें और बीमारियां दूर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान में सूरत यासीन पढ़ने के फ़वाइद। बाज़ रवायत में मौजूद है कि अगर सूरत यासीन मैयत के पास तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला हर हुर्फ के बदले फरिश्ता भेजता है, और सब फरिश्ते सफ बांध कर मैयत के आगे खड़े हो जाते हैं और उस मैयत की रहमत व बख्शिश तलब करते हैं और दफन होने तक हाजिर रहते हैं। जिस कब्रिस्तान में सूरत यासीन पढ़ी जाए तो वहाँ 40 दिनों तक मुर्दों को अजाब नहीं होता। सुभान अल्लाह। कि 40 दिनों तक मुर्दों को अजाब नहीं होता। मरहूम वालदैन की ज़ियारत के लिए सूरत यासीन का अमल करें। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने मरहूम वालदैन की ज़ियारत की ख्वाहिशमंद हो तो उसे चाहिए कि वो सूरत यासीन 7 मरतबा पढ़कर अपने वालदैन मरहूम को बख्शे, तो रात को उसको ख्वाब में अपने वालदैन की ज़ियारत होगी। सुभान अल्लाह। बुरी मौत से निजात के लिए सूरत यासीन पढ़ें। सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बुरी मौत से पनाह मांगनी चाहिए। बुरी मौत से महफूज रहने के लिए रोज़ाना 1 मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करें। नमाज मगरिब के बाद सूरत यासीन की ये 3 आयात पढ़ लें। इंशाअल्लाह सूरत यासीन पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल करने से किसी किस्म की बुरी मौत से निजात मिलेगी।
इंशाल्लाह। सूरत यासीन कुरान मजीद का दिल है और बेपनाह फ़वाइद के हामिल है। हर तरह की हाजत रवाई इसकी तिलावत में मज़मर है और ख़ासकर इसे पढ़ने वाला अल्लाह बहुत राज़ी होता है, और ख़ासकर उसे पढ़ने वाला अल्लाह उससे बहुत राज़ी होता है। अहदीस में इसकी बेपनाह फ़ज़ाइल बयान की है। सुभान ताला। दीनो दुनियावी भलाई चाहते हो तो सूरत यासीन पढ़ो। अगर हर दुआ की कबूलियत चाहते हो तो सूरत यासीन पढ़ो। बेतहाशा दौलत चाहते हो पर दौलत वो जो हिलाल हो चाहते हो तो सूरत यासीन पढ़ो। इज़्ज़त व अज़मत चाहते हो तो सूरत यासीन पढ़ो। इज़्ज़त व अज़मत चाहते हो तो सूरत यासीन पढ़ो। ये सूरत मक्की है। इस सूरत की शुरुआत हुर्फ मक्कात से होती है। कुरान में बहुत सी सूरतों का आगाज़ इन अल्फाज से होता है। इन सब में जो चीज़ आम है वो ये है कि इन अल्फाज के बाद अल्लाह कुरान के बारे में कुछ फरमाते हैं कि सूरत यासीन के बारे में ये बात कही जाती है कि ये कुरान का दिल है। ये बात किसी मस्तंद रवायत से साबित नहीं होती, अगरचे ये बात अच्छी है कि हम इसे मस्तरद नहीं कर रहे। ये हमारी रवायात का हिस्सा है। ये अल्फाज हुर्फ़ मक्तात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अजनबी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में अम्मी कहा गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में अम्मी कहा गया, अम्मी जो कुछ पढ़ नहीं सकते। इन अल्फाज के इस्तेमाल इसी तरह भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी जा रही है। जिससे सवाल पैदा होता है, कौन उन्हें तालीम दे रहा है, कौन उन्हें तालीम दे रहा है। और अल्लाह इस बात का जवाब भी देता है कि ये कुरान है, वल कुरानिल हकीम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं इस हकीम कुरान की कसम खाता हूँ। जब कुरान कसम लेता है तो वो किसी खास वजह से होती है, तो वो किसी खास वजह से होती है। सुभान अल्लाह।